Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata. कृष्ण शिला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम देख रहे पहले स्कंद के 8 चैप्टर के श्लोक क्रमांक 37। श्लोक इस प्रकार है। हरे कृष्णा। अप्यज्ञस्त्वं स्वकृतेतः प्रभो। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृतहेत प्रभो। जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः। जिहाससि स्वित्सुहृदो अनुजीविनः। येषां न चान्यद्भवता पदाम्बुजात्। येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात्। परायणं राजसु योजितामहसाम्। परायणं राजसु योजितामहसाम्। Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. O my Lord, you have executed all duties yourself. Are you leaving us today? Though we are completely dependent on your mercy and have no one else to protect us, now when all kings are at enmity with us. Purport. The Pandavas are most fortunate because with all good luck they were entirely dependent on the mercy of the Lord. In the material world, to be dependent on the mercy of someone else is utmost sign of misfortune. But in case of our transcendental relation with the Lord, it is the most fortunate case when we can live completely dependent on Him. The material disease is due to thinking of becoming independent of everything. But the cruel material nature does not allow us to become independent. The false attempt to become independent of stringent laws of nature is known as the material advancement of experimental knowledge. The whole material world is moving on this false attempt of becoming independent of the laws of nature. Beginning from Ravana, who wanted to prepare a direct staircase to the planets of heaven, down to the present age, they are trying to overcome the laws of nature. They are trying now to approach distant planetary system by electronical mechanical power. But the highest goal of human civilization is to work hard under the guidance of the Lord and become completely dependent on Him. The highest achievement of perfect civilization is to work with the valor but at the same time depend completely on the Lord. The Pandavas were the ideal executor of the standard of civilization. Undoubtedly, they were completely dependent on the goodwill of the Lord Sri Krishna, but they were not idle parasites of the Lord. They were all highly qualified both by personal character and by physical activities. Still, they always looked for the mercy of the Lord because they knew that every living being is dependent by the constitutional position. The perfection of life is therefore to become dependent on the will of the Lord, instead of becoming false independent in this material world. Those who try to become falsely independent of the Lord are called anatha, or without any guardian.
whereas those who are completely dependent on the will of the Lord are called Sanata, or those having someone to protect them. Therefore, we must try to be Sanata so that we can always be protected from the unfavorable condition of material existence by the deluding power of the external material nature. We forget that the material condition of life is most undesirable perplexity. The Bhagavad Gita therefore directs us 7.19 that after many births, one fortune person becomes aware of the fact that Vasudeva is all in all, and that the best way of leading one's life is to surrender unto him completely. That is a sign of Mahatma. All the members of Pandava family were Mahatmas in the household life. Maharaj Yudhishthira was the head of these Mahatmas, and the Queen Kunti Devi was a mother. The lesson of the Bhagavad Gita and all the Puranas, specifically the Bhagavad Purana, are therefore inevitably connected with the history of. For them, separation from the Lord was just like the separation of a fish from water. Srimati Kunti Devi therefore felt such separation like thunderbolt, and the whole prayer of the queen is to try pursue the Lord to stay with them. After the battle of Kurukshetra, although inimical kings were killed, their sons and grandsons were still there to deal with the Pandavas. It is not only the Pandavas who are put into the condition of enmity, but all in of us are always in such a condition, and the best way of the living is to become completely dependent on the will of the Lord and thereby overcome all the difficulties of material existence. हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के श्लोक में हम आरंभ में इस श्लोक में कहा गया है स्वकृते प्रभो, कि इसका मतलब है कि जो भी कार्य भगवान के लिए हो वो अपने भगवान के इच्छा अनुसार ही हो जाती है और अपने आप ही हो जाती है। तो हमने इस अध्याय के प्रारंभ में देखा था कि भगवान कृष्ण जब अपने कार्य समाप्त करके हस्तिनापुर से द्वारका की ओर प्रस्थान करने के लिए तत्पर थे, आरूढ़ थे, तो कुंती महारानी यहाँ पे कह रही है कि जो कार्य आपके इच्छा मात्र से हो सकती है तो क्यों आप द्वारका जाने के लिए इच्छुक हो, तो क्या आप हमें त्याग देंगे। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन विच यहाँ पे जो श्लोक में अपि अद्य नस्त्वम स्वकृते प्रभो। फिर आगे कुंती महारानी कहती है कि अनुजीविना मतलब हम आपके दया पर जी रहे हैं। देन इट सेड दैट सुहृद मतलब जो भक्त क्या करते, एशाम न चान्यत भवता पदाम्बुजात, आपके चरण कमलों के अलावा अन्य कोई हमारा आश्रय नहीं है। देन एट द एंड ये श्लोक में कहा गया है कि राजसु योजिताम हसाम, तो इसका मतलब है कि हमारी रक्षा आपके द्वारा अधिक अपेक्षित है। ऐसा क्यों कहा गया है कि बाल प्रबोधिनी टीका में कहा गया है कि कुंती महारानी कहती है कि हम इस महाभारत के युद्ध में बहुत से राजाओं को दुख दिए हैं, तो ऐसा नहीं कि अभी वो हमसे मित्रता करेंगे, सभी हम पर आक्रमण करने के लिए प्रयास करेंगे। इसके वजह से हमारी जो रक्षा है आपके द्वारा अधिक अपेक्षित हो गई है। तो दैट इज अ मीनिंग ऑफ लास्ट लाइन, राजसु योजिताम हसाम। तो इस श्लोक में अभी माता कुंती महारानी और पांडव किस तरह पूरी तरह भगवान के ऊपर शरणागत है और पूरी तरह उनके ऊपर भगवान के ऊपर निर्भर है, वही प्रभुपाद जी हमें उनके तात्पर्य में हमें सिखाते हैं। प्रभुपाद जी कैसे कहते हैं कि जैसे कलयुग में हम सोचते हैं कि हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक संसार में अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता है तो उसे अभागा माना जाता है, पर अगर कोई व्यक्ति भगवान के ऊपर निर्भर तो उसे भाग्यशाली माना जाता है। उसके लिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं पांडव का, जो पांडव पूरी तरह भगवान कृष्ण पर निर्भर थे। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पांडव सब क्या थे, भाग्यशाली है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये जो भगवान के ऊपर निर्भर रहना या भगवान के ऊपर सरेंडर होना या शरणागति होना, इसका क्या मतलब है, ये इसमें प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं कि हम भगवान के ऊपर शरणागत है और
इवन भगवान भी स्वयं कहते हैं कि भगवत गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मतलब सभी धर्मों को छोड़ दो और मेरे शरण में आ जाओ और मेरे शरण लो। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जिसमें हम समझ सकते हैं कि शरणागति का क्या अर्थ है, शरणागति का क्या स्टेज है, किस प्रकार हम शरणागति हो सकते हैं और किस प्रकार हम शरणागति हमें समझना चाहिए। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हम भगवान के ऊपर शरणागत है तो इसका मतलब क्या है। तो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षशिस्ति विश्वासो गोपत्रे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कर्पण्य षड्विधा शरणागति। तो शरणागति के 6 स्तर है वो बताया गया है। तो पहला क्या है, अनुकूलस्य संकल्प, मतलब जो कुछ भक्ति के लिए अनुकूल है उसे हमें ग्रहण करना है। जैसे कि साधु संग हो गए, नाम कीर्तन हो गए, भागवत शरण हो गए, डेटी वर्शिप हो गए, धामवास हो गए। तो ये पहला स्तर हो गया शरणागति का। सेकंड स्टेज है प्रातिकूलस्य वर्जनम, मतलब जो कुछ भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको हमें त्यागना है। जैसे कि हम जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हमें बताया जा रहा है, अगर हम इसके ऑपोजिट जाते हैं तो इसको हमको त्यागना पड़ेगा। फिर थर्ड बोलते हैं कि रक्ष शिष्यति विश्वासो, मतलब हमारे अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। तो दैट इज अ थर्ड पॉइंट। फोर्थ बोलते हैं कि गोपत्रवे वर्णम तथा, मतलब भगवान कृष्ण ही हमारे स्वामी है, हम उनके दास है। तो दैट इज अ फोर्थ वन, शरणागति का जो लेवल है। एंड फिफ्थ वो कहते हैं कि आत्मनिक्षेप मतलब हमारी खुद की कोई इच्छा नहीं है, हमेशा हम भगवान की तृप्ति के लिए या भगवान की सेवा के लिए हमें मतलब हमारा वही परम कर्तव्य होना चाहिए। एंड सिक्स्थ कहे गए कि कार्पण्य। तो कार्पण्य मतलब हमारे अंदर इतना विनम्र होना चाहिए, उसके बारे में बताया। वी शुड बी वेरी हम्बल। तो शिक्षाष्टकम में हम वही सीखते हैं कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदाहरि। तो ये एक्चुअल जो 6 स्तर है जो शरणागति का, जो हम हमेशा कहते हैं कि वी आर सरेंडर्ड ऑन द लॉर्ड, तो ये 6 स्तर है शरणागति का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पांडव जो है जो पूरी तरह भगवान के कृपा पर आश्रित थे। दैट्स वाई जो सेकंड लाइन था रक्ष शिष्यति विश्वासो, मतलब हमेशा वो भगवान के कृपा पर और भगवान के दया पर आश्रित थे। तो ये प्रभुपाद जी हमें अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं। एंड आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो जीव हमेशा सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार करता है, लेकिन भौतिक प्रकृति जीव को स्वतंत्र नहीं बनने देती है। तो आज के समय में लोग सोचते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली है और हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं 3rd चैप्टर 27 श्लोका में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मतलब जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हम आज के एक अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो दैट इज अ फेमस एग्जाम्पल कि आज के समय में हम जो एक कोविड के महामारी से जो गुजर रहे, तो इसके पहले हम सोचते थे कि हम जहाँ चाहिए वहाँ पे जा सकते थे, जहाँ चाहिए हम रह सकते थे। और पर ये जो वायरस जो है, जो हमें दिखता भी नहीं है, इस वायरस की वजह से हम पूरी दुनिया अभी रुक गई है। तो इससे प्रकृति हमें इससे सिखाना चाहती है कि हम हमेशा निर्भर रहते हैं किसी के ऊपर, हम कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, वी शुड बी डिपेंडेंट। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में रावण का एग्जाम्पल देते हैं कि रावण भी स्वतंत्र होना चाहता था और स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, पर वो नहीं कर पाया। तो और आज के समय में भी लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अलग अलग प्लैनेट में जाने की कोशिश करते हैं, पर वे असफल हो जाते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी एक अच्छा ग्रंथ लिखे हुए, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट। तो इन दैट वी कैन अंडरस्टैंड, मतलब हम इससे समझ सकते हैं इन दैट बुक की किस तरह दूसरे प्लैनेट में हम जा पाए। तो प्रभुपाद जी ने इसके लिए वो ग्रंथ लिखा हुआ है। फिर आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो मानव सभ्यता का जो सर्वोच्च लक्षण क्या है, भगवान के निर्देशन पर चलना। तो भगवान पर निर्भर, मतलब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान पर निर्भर रहना मतलब ये नहीं कि हम काम ही नहीं करें। बहुत लोग बोलते हैं कि हम भगवान पर निर्भर है, मतलब हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, जो भी करना है भगवान करेंगे।
पर हम जैसे कि अभी जो दामोदर लीला गई, उसमें हम देखते हैं कि जब माता यशोदा जब भगवान को उक्कल से बांधने की कोशिश करती है तो 2 उँगली छोटी पड़ती थी। तो एक था हमारा प्रयास और दूसरा था भगवान कृष्ण की कृपा। तो यहाँ पे हमारा जो हम अगर समझो कि भगवान पर निर्भर मतलब क्या है कि हमारा प्रयास होना ज़रूरी है, पर भगवान भगवान के साधु शास्त्र के मार्गदर्शन पर चल के तो वही सर्वोच्च लक्षण है, ये प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जो पांडव जो थे वह भगवान पर पूरी तरह आश्रित थे, पर वो आलसी जीव नहीं थे। हम देखते हैं कि पांडव भी बड़े-बड़े विद्वान, उनके वो भी बड़े-बड़े विद्वान, अलग-अलग उनके अंदर स्किल्स थे, अलग-अलग क्वालिटी थे। जैसे कि हम युधिष्ठिर महाराज को देखेंगे, वो धर्मराज थे। अर्जुन वो बहुत बड़े धनुर्धर थे और भीम वो बहुत बलवान थे, पर वो हमेशा भगवान पर निर्भर थे क्योंकि उन्हें पता था कि जीव का स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। यही हमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे। फिर आगे एट द एंड प्रभुपाद जी हमें बताते कि अनाथ और सनाथ का मतलब। तो जैसे कि हम अभी नॉर्मली एक अनाथ का एग्जांपल हम नॉर्मली एक देखा जाएगा तो क्या कहते हैं कि जिसका कोई माँ-बाप नहीं है, जिसका कोई रक्षक नहीं, उसको अनाथ कहते हैं। तो पर यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि अनाथ का एक्चुअल मतलब क्या है कि जैसे कि जीव हमेशा प्रयास करता है कि स्वतंत्र रहने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। अगर वो सोचता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सक्षम हूँ खुद ही करने के लिए, तो उन्हें अनाथ बोला जाता है। और सनाथ जो व्यक्ति भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है, उसे सनाथ कहलाता है। मतलब जिस जिस व्यक्ति के पास स्वामी या नाथ नहीं है, वो अनाथ है और जिस व्यक्ति के पास स्वामी और नाथ है, वह सनाथ है। तो प्रभुपाद जी अपने अपने लेक्चर में एक उदाहरण देते हैं कुत्ते का। जैसे कि 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक गली का कुत्ता और एक पालतू कुत्ता। तो ये दोनों कुत्ते में क्या अंतर है? तो जो गली का कुत्ता है, वो अगर उसे कुछ खाने के लिए खाना चाहिए तो वो क्या करता है कि हर एक घर के पास जाता है और फिर अपना जीभ बाहर निकालता है और अपना पूँछ हिलाता है। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं खाना दे देते हैं और बहुत सारे लोग उसको मार के भगा देते हैं। अगर उसको खाना भी मिलता है, तो जब वो बाहर निकलता है तो दूसरे जो गली के कुत्ते हैं वो खाना उससे छीन लेता है। मतलब वो हमेशा दुःख ही भोगता है। तो यह गली का कुत्ता हो गया। फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो पालतू कुत्ता होता है, वो क्या करता है हमेशा अपने मालिक के आश्रय पर रहता है और मालिक के आश्रय में रहने के कारण उसे खाने-पीने और रहने और कोई उसको मतलब उसको पूरी तरह से रक्षा मिलता है। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं कि क्या डिफरेंस है एक गली का कुत्ता और एक पालतू कुत्ते में या एक अनाथ में और एक सनाथ में। जो गली का कुत्ता है वो अपने गले में जो उनके जो मालिक है उसका जो पट्टा है वो गली का कुत्ता नहीं पहना हुआ रहता है। बट वो जो पालतू कुत्ता है वो अपने जो मालिक का जो पट्टा है वो पहना हुआ रहता है। तो गली का कुत्ता हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, इसलिए वो हमेशा दुःख भोगता है और जो पालतू कुत्ता है वो हमेशा अपने मालिक पर निर्भर रहता है, इसके लिए वो दुःख नहीं भोगता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें अपने तात्पर्य में यही समझाते हैं कि हमें हमेशा भगवान के दया पर, भगवान के आश्रय पर और भगवान की कृपा पर निर्भर होना चाहिए। वही हमें आज के श्लोक में भी कुंती महारानी कह रही है, जब भगवान कृष्ण द्वारका की ओर जा रहे थे, तो ऑन दैट टाइम जो भी मतलब पूरे पांडव और कुंती महारानी स्वयं पूरे भगवान के ऊपर इतना निर्भर थे, तो वही हमें प्रभुपाद जी यहाँ पे सिखाना चाह रहे हैं कि हाउ वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, किस तरह हमें निर्भर होना है भगवान के ऊपर। दैट विच हम प्रभुपाद जी हमें अपने तात्पर्य में सिखाते हैं। सो हरे कृष्णा, आई विल स्टॉप हियर बिकॉज ये जो पर्पट जो है प्रभुपाद जी ने जो लिखा है बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी हमें समझाते कि किस तरह हमें डिपेंडेंट होना है और डिपेंडेंट का क्या मतलब है एंड दैट विच प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में भी वही समझाते। तो आई विल स्टॉप हियर। तो आई वांट एंड आई रिक्वेस्ट कि आप भी अपने कुछ पॉइंट्स इस श्लोक में ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा सत्यरथ प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास, थैंक यू सो मच। अपने जो शरणागति के जो 6 स्टेजेस बताए इन डिटेल्स, उसके लिए थैंक यू। और अपने हर एक श्लोका का हर एक चीज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और शिला प्रभुपाद जी उनके एक लेक्चर में बोल रहे थे कि जीव है ना, वो हमेशा खुद को पुरुष समझता है, पुरुष। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर संसार मीन्स हम लोग अगर आदमी खुद को आदमी समझ रहे और एक स्त्री को स्त्री समझ रहे, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो जीव है ना, वो भी एक प्रकृति है और पुरुष खाली एक ही है, जो भगवान कृष्ण। तो ये हम लोग ये श्लोका में भी देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से शिला प्रभुपाद जी ने इन डिटेल्स ये लिखा है ये श्लोका में, और अनाथ और सनाथ के बारे में, महात्मा के बारे में। तो थैंक यू प्रभु जी। और आपने बहुत अच्छे से कनेक्ट भी किया भगवत गीता के श्लोका से। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा उद्धव पृष्ठ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नमस्ते। हरे कृष्ण उद्धव प्रभु। पृष्ठ। या हरे कृष्णा। आवाज आ रही प्रभु? हाँ, अभी आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। इसको कहते हैं ना, वो फायर राउंड होता है ना, फायर राउंड था आपका एकदम फटाफट। ऑल द पॉइंट्स वर कवर्ड वेरी नाइसली। वंडरफुल क्लास, थैंक यू वेरी मच प्रभु। जो डिपेंडेंट के ऊपर जो एक पॉइंट थी इसके अंदर, आप बहुत सारी पॉइंट्स आपने बताई। डिपेंडेंट के ऊपर एक ऐसी बात बताई कि इतना डिपेंडेंट होना चाहिए भगवान के ऊपर, जिस तरह पानी के अंदर मछली होती है। मछली कैसे डिपेंडेंट है पानी के ऊपर, उसी तरह हमको होना चाहिए भगवान के ऊपर, कि अगर भगवान नहीं है हमारे जीवन में तो तुरंत मृत्यु आ जाए। यानी ऐसा इतना डिपेंडेंट होना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट जो है इस पर्पट के अंदर है। वेरी नाइस। हरे कृष्णा, थैंक यू। या थैंक यू सो मच प्रभु जी। यहाँ पे प्रभुपाद जी वही हाईलाइटेड कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी एडिंग दिस पॉइंट प्रभु जी। अनदर पॉइंट था कि जो डॉग वाला, तो प्रभुपाद हमेशा दूसरे अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि भाई इफ यू वांट टू लव मी यू हैव टू लव माय डॉग। यानी अगर आप मुझसे प्यार करना चाहते हो तो आप मेरे कुत्ते से प्यार करो। वही जो बात है कि जितने भी जीव है उन सभी से हमको प्रेम भाव रखना चाहिए, क्योंकि वो सब जीव भगवान के ही जो मतलब अंश हैं, या भगवान भी उनके, परमात्मा भी उनके अंदर वास करता है। तो हमको उन सभी, यानी उदाहरण की तरह से हमको सब कुत्तों को, जितने भी जीव हैं सबको हमको प्यार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान से प्यार करना चाहते हैं तो। हरे कृष्णा। या प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी, एक छोटा सा एक लीला आती है यहाँ पे। आई वॉज हियरिंग यस्टरडे कि एक कुंभकोणम में, जो कुंभकोणम जो साउथ इंडियन में जो टेम्पल है, वहाँ पे जो विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु का। तो वहाँ पे कैसा है कि भगवान विष्णु मतलब ही वॉज लाइंग, मतलब वो लेटे हुए, मतलब दर्शन है उनका। तो एक कहत ये बोलते कि एक डिवोटी था वहाँ पे, ही वॉज सो डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। वो हमेशा ये सोचता था कि मैं कभी भगवान का दर्शन करूं, कभी भगवान का दर्शन करूं। तो एक बार क्या होता है कि वो वो दर्शन के लिए अंदर जाता है भगवान के मंदिर में। बट वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण को अलाउड है, तो अदर कास्ट यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते, यू शुड नॉट कम इनसाइड। तो वो फिर उस भक्त को बाहर भेज देते हो उसको ना। तो जब वो ब्राह्मण जो पुजारी था, वो जब अंदर अपने गर्भगृह में आते हैं भगवान के,
तो भगवान का जब गर्भगृह में जब एंटर करते तो वो देखते कि जो भगवान विष्णु जो लेटे हुए हैं, he was वो मतलब 180 डिग्री से वो टर्न कर रहे हैं ऑन द सेम प्लेस। ही वाज टर्निंग ऑन द 180 डिग्री, मतलब जो क्लॉकवाइज टर्न करने के लिए चालू करते हैं। तो जब वो एकदम मतलब एकदम ये हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है वो जो पुजारी। तो व्हेन ही केम्स आउट, मतलब वो जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वो जो भक्त जो था वो प्रदक्षिणा करते रहते हैं, बाहर कुंभकोणम टेम्पल के बाहर से प्रदक्षिणा करते हैं। तो वो मतलब जैसे जैसे वो प्रदक्षिणा कर रहे हैं, भगवान भी टर्न होते जा रहे हैं, मतलब भगवान का चेहरा और वो भक्त आमने सामने है। एंड बोथ, जैसे कि वो भक्त जैसा प्रदक्षिणा कर रहे हैं, वो भगवान भी 360 डिग्री मतलब पूरा क्लॉकवाइज वो भी टर्न होते जा रहे हैं। तो दैट वाज अ नाइस स्टोरी आई वाज हर्ड प्रभु जी यस्टरडे अबाउट कुंभकोणम में एक टेम्पल में, ये एक ट्रू स्टोरी आई हर्ड प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thank you हरे for sharing कृष्णा। the story. हरे कृष्णा। और प्रभु ये उडुपी का भी वही है ना सरस्वती गिरधर प्रभु, जो कनकिन किंडी या बोल के है, कनक दास को। तो मतलब भगवान ने अपने भक्त के लिए पूरा, जो नॉर्मली हम जब टेम्पल में जाते हैं तो सामने से दर्शन मिलता है, लेकिन एक भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान ने पूरा प्रथा चेंज की। आज भी उडुपी मठ है, कृष्ण भगवान का जो टेम्पल है, वहाँ पे आज भी दर्शन जो है फ्रॉम बैक साइड, वो जो भगवान टर्न हुए थे, और वो जो 8 आई थिंक 9 होल्स है उस विंडो में। तो और ऐसा कहते हैं कि हर एक जो होल है उसमें से भगवान का अगर आप दर्शन लोगे तो आप पूरे जो 9 ग्रह जो हमको वो रहता है ना ग्रह दोष, उससे आप मुक्त हो जाते हो। तो बहुत ही अच्छा हो। और एक पॉइंट जहाँ यहाँ कुंती महारानी बहुत अच्छा समझा रही कि अभी सब लोग जो हमारे एनिमी हो गए हैं। तो प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे थे कि मटेरियल लाइफ मीन्स एवरीबडी इज अ एनिमी, मतलब कोई भी आपको उनसे ज्यादा प्रगति करे वो कोई खुश नहीं रहता उससे। सो कभी भी मतलब हमारे ऑफिस में हो, हमारे स्कूल, कहीं पे भी हम लोग ऐसे ही झूठ मूठ का एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, बट इफ वी सी दैट समबडी इज गोइंग, मतलब मेरे से ज्यादा कोई प्रगति कर रहा है, तो अंदर से उसको एनवी या फिर जेलसी या गुस्सा रहता है। तो एक्चुअली कुंती महारानी जो यहाँ बता रही है वो हम सबको भी अप्लाई होता है। ओनली इन आवर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी हम लोग दास बनना चाहते हैं, बट इन मटेरियल लाइफ हर कोई मास्टर बनना चाहता है। एंड एवरीबडी वांट्स टू बी बेटर, मतलब आप अगर कोई आदमी मेरे से नीचे है देन इट्स ओके, लेकिन मेरे से ऊपर कोई जा रहा है देन इंटरनली मेरे लिए वो एनिमी हो जाता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मटेरियल लाइफ में भले ही कोई हमारी तारीफ करे इन मटेरियल कॉन्शियसनेस, बट अंदर से उसको लग रहा है कि ये मुझसे आगे बढ़ रहा है, तो ये मेरा एनिमी है। जैसे उस दिन नंदकिशोर प्रभु ने भी बहुत अच्छा इसके ऊपर बताया था। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू सर्वदेव गिरधर प्रभु, आपका हर क्लास जबरदस्त होता है। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद गुरु महाराज। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। वो प्रभु जी जो उडुपी का आपने कहा था वो एकदम सही था प्रभु। वी हैव टू, मतलब जब हम दर्शन लेने जाते हैं तो हमें 360 डिग्री घूमना पड़ता है पहला। व्हेन वी कम बैक साइड, फिर जाके वो कना कना किंडी बोलते हैं उसको, मतलब वो किंडी बोलेगा तो दिस विंडो, कन्नड़ा में किंडी बोले तो विंडो बोलते हैं, तो कना का बोलेगा तो वो दैट उनका नाम है, तो कना कना किंडी, तो वो किंडी से हमें वो भगवान का दर्शन मिलता है प्रभु। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।